I'd like to now invite Republic Media Network's founder and editor-in-chief, Mr. Arnab Goswami, along with Shri Rakesh Agarwal, IG CRPF, Shri Ashok Kumar, Commandant 210 Cobra Battalion, CRPF, and Sub-Inspector Rudresh Singh, 210 Cobra Battalion, CRPF, to please come up on stage to light the ceremonial lamp. Ladies and gentlemen, a round of applause as they come up. These are the people on the ground who've earned their accolades, as we request them to please move towards the ceremonial lamp and light it. His brilliance to the event. Thank you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen. Up next, we have our brave security personnel whose courage and commitment have safeguarded the nation's journey and transformed a belt which has been a no-go area for decades. For years, they have fought a difficult battle in some of the country's most challenging terrain, displaying extraordinary courage and commitment. Ladies and gentlemen, we present to you a short intro to their remarkable story on how they wiped out Maoist terror. From 126 districts, once defined as a red corridor to just 8, Maoist-related violence is down by almost 90% in India. And that transformation hasn't been accidental. Spearheading this decisive push are the jungle warriors, the CRPF's Cobra Battalion. Operating deep in Maoist hotbeds, they neutralized over 364 Maoists and forced over 2,300 surrenders in a single massive push. By cutting off terror financing and dismantling guerrilla infrastructure, they choked the Maoist ecosystem out of 90% of its territory, reclaiming democracy and development for millions. Stand up as we salute the unbreakable shield of our republic. Ladies and gentlemen, please welcome the elite warriors of the Cobra Battalion to the Republic Summit 2026. Commandant 210 Cobra Battalion CRPF and Sub-Inspector Rudresh Singh, 210 Cobra Battalion CRPF. Please come up, gentlemen, for a special discussion on the momentous achievement, the end of Maoist terror, together with Niranjan Narayanaswamy, Executive Editor, Republic TV, and Rakshita Mishra, Senior Special Correspondent, Republic TV. Until this morning is, we all know in the last year, and like Abhishek, my colleague, said this morning, we live from summit to summit. This year, we are looking, when we say last year, we look at the last 1 year since we had the Republic Plenary Summit. Since the Republic Plenary Summit, we've had 2 wars, we've had Operation Sindoor, and what many of us did not know is that we had one of India's
largest internal security operations where 8,000 officers were involved. It was called Operation Black Forest. Around the same time when Operation Sindoor was on, this was an operation that went unreported largely. 8,000 officers on the ground were involved and 31 Maoists were eliminated. And for them, the fighting never stops. Even as we speak, the Cobra Battalion is in Manipur. They have a big challenge. They've been called into Manipur and to fight, and they continue to fight to keep us safe. So Rakesh ji, thank you for taking the time out and being with us, sir. Ashok Kumar ji, thank you very much. And Rudresh Kumar ji, thank you. Thank you for being with us. I'd like to start with you, Rakesh Agarwal. I remember, sir, as when I started my career, when in the first newsroom with Arnab sir, every week there would be a Maoist attack. Every week. And they were so well equipped, prepared, that they would have cameras. They would capture the ambush of how our forces are attacked. Our forces were sitting ducks. From then to now, in the last 1 decade, I think we've come a long way. And this is the year, ladies and gentlemen, we've eliminated Maoist terror. So can we please have a huge round of applause for our forces? They've eliminated Maoist terror. There are no Maoists left anymore. Congratulations, sir. First up, I'd like you to tell us what has changed in the last 1 decade, if I can ask you, Mr. Ashok. Niranjan ji, you were mentioning about that they were filming the attacks on the security forces. I will say the basic ideology of Maoists is to terrorize the state, to overthrow the government by violent means, and this is part of their ideology to threaten the security forces, to keep their morale down, so that they succeed in their nefarious plans. What has changed in the last few years is that now there is lot more synergy among the security forces, among the intelligence agencies, among all the central forces and the state governments, and the entire landscape has changed. Now we have the latest weapons, latest technology, latest vehicles, and whatever we demand from the government, it is made available to us in no time. We have the clear-cut deadlines that this is to be achieved, and that these deadlines are decided by the top brass after discussion with the ground troops, taking into account what are the difficulties at the ground and how we can overcome them. So we have the clear-cut targets, clear-cut deadlines, logistics are there, weapons are there, and the proper training is given to the troops. That is why now we see the Naxal Mukt Bharat coming up in front of us. जब आपने डेडलाइन की बात करी सर, आपको लगता है कि जब किसी भी फोर्स के जब हम जवान होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको एक बार जब गोल क्लियर मिल जाए तो वो उस पर डिलीवर करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं? आपको लगता है कि एक जो विल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लैरिटी ऑफ गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जब देश के गृह मंत्री पूरे देश के सामने एक कमिटमेंट करते हैं कि 31 मार्च 2026, जब हम हेडलाइन बनाते हैं और जब हम उसको पढ़ते हैं, खुद ब खुद एक तरह से मोटिवेशन आ जाती है कि क्या ये हो सकता है. जैसे निरंजन ने कहा, हम कभी सोच सकते थे कि ये सफाया हो जाएगा. आज हम सफाई की बात कर रहे हैं, लाल आतंक की. उस लाल गलियारे में आज हम देख रहे हैं तिरंगा फहरा रहा है. तो उसकी नींव अगर आप बताएं, पहला कदम क्या था, जो सबसे मेजर स्टेप था आप कहेंगी कि इस मुकाम तक आज हम पहुंच सके? जो नक्सल मुक्त भारत के लिए गृह मंत्रालय ने टारगेट दिया था 31 मार्च 2026 का, उसमें सभी लोगों का सहयोग रहा, चाहे वो CAPF हो, गृह मंत्रालय का MHA हो, या स्टेट गवर्नमेंट हो, या सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, NIA हो, ED हो. सभी ने अपना बहुत अच्छे से काम किया, एक दूसरे को कोऑपरेट किया,
और इस टारगेट को अचीव करने में मदद की। और इन टारगेट्स का एक फ़ायदा ये होता है कि हर एक को अपना अपना एम पहले से पता होता है कि मेरे को 1 साल के अंदर इस चीज़ को अचीव करना है। और जब ये टारगेट हम लोगों को दिए गए थे तब फ्रैंकली हम लोगों को लग रहा था शायद ऐसा ना हो कि हमें 5-6 महीने और ज़्यादा लगें इसको अचीव करने में और 31 मार्च तक हम लोग अचीव ना कर पाएँ। लेकिन जिस हिसाब से हम लोगों को सपोर्ट और समय समय पर जो मार्गदर्शन गृह मंत्रालय की तरफ से मिलता रहा, जितनी भी ट्रूप्स की जो रिक्वायरमेंट थी उनको समय समय पर पूरा किया जाता रहा। ऑपरेशन के टाइम पर जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जो हेलीकॉप्टर्स की तरफ से हेलीकॉप्टर्स वगैरह हम लोगों को मिले ताकि हम लोग फोर्स के पास राशन पानी पहुंचा सकें और जो जवान इंजर्ड हो जाते हैं उनको इवैक्यूएट कर सकें, तो बहुत ही वो एक अभूतपूर्व जो प्लानिंग थी वो इसका पार्ट था, जिसकी वजह से ये लक्ष्य को हम लोग हासिल कर पाए। Now, Ashok ji, you led or you were a key part of the Black Forest operation. You were there जब ये Black Forest operation हुआ था last year in 2025. Yeah. You had 8,000 forces on the ground. You had close to 8,000. I'm guessing that's around. Yeah. Around. So, how do you know what to expect? Because we have seen, and in the course of our reporting, we have seen that in many cases they have complex weapons. They're getting weapons from different sources. Of course, many of them would scavenge on weapons left behind or stolen. But there are also, in the case of Manipur, for example, the weapons are coming from China. The weapons are coming from America. Right? We know who's supporting them. It's coming from different places, but they're getting these weapons. So how do you prepare to go into jungle warfare not knowing what the enemy is prepared for when you meet them? जय हिंद। मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कोबरा के लिए स्पेशली व्हाट ही आस्क्ड अबाउट द प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट टास्क वेयर वी आर नॉट अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस। द कोबरा बटालियंस इन CRPF वर रेज्ड एज ए स्पेशलाइज्ड यूनिट which were operationalized on the ground in year 2011 when this Naxal menace was adjusted as the biggest internal security challenge for the country. And it is a Cobra stands for a commando battalion for the resolute action. And today I must say this is the premier force which the nation has to deal with especially the Naxal menace and any kind of the internal security threat or challenge ahead. These commandos were basically trained or selected. They are selected from the CRPF only. They have the aptitude and they given the very rigorous training, and training in the sense of all the tasks. What are the jungle survival, what the guerrilla warfare, or whether it's the navigation, or whether it's the terrain challenges, or any kind of thing. For that they are prepared for the very rigorous training. And once they come out from this training, which is being imparted in our training center at Belgaum, they become or they're ready to tackle up any kind of situation. So this is how the Cobra, they operate in very small team and carry out the intelligence-based operations. After raising of this thing Cobra, for the purpose which it was raised, so today with the proud we can say they were meet their what you can say target was given in the last 15 years. I mean Naxal menace has been totally wiped out from the country. But this is the special force which the nation which have been awarded more than 700 gallantry medals by the government of India. It is the proof of their output, and out of 700 gallantry medals, there are the 30 Chakra series medals, gallantry medals, which includes the 5 Kirti Chakra and 25 Shaurya Chakra medals too. Though in this fight we lost 78 our brave soldiers, my deepest tribute and regard and respect to all commandos who
given their life for the country, made the supreme sacrifice to achieve this target, along with the 3K9 also. They are also part and parcel of our team, and they had been very, what you can say, proved themselves as good as a commando. So this is the Cobra units. They are doing a fantastic job, and whatever challenges ahead for this Cobra, we are preparing for it, though it's a new challenge, and definitely I can assure the things, whatever target will be given, what is task will be given, so we try to achieve its minimum possible times. एक छोटा सा फॉलो अप क्वेश्चन है आपको, बिकॉज यू हैव बिन देयर, आप ग्राउंड पे थे और अभी भी है, आप मणिपुर में आपके बटालियन है वहाँ पे 210 बटालियन. एक समय था जब पॉलिटिकल नहीं करूंगा इसको, आई विल नॉट मेक दिस पॉलिटिकल, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल पर्सनालिटीज would back Maoists. They would justify the existence of Maoists. और अभी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और लीडरशिप है आपका, स्पेशली द यूनियन होम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल, he keeps talking about eliminating Maoists. He's made it his mission to talk about to eliminate Maoists, right? ये पॉलिटिकल विल कितना इंपॉर्टेंट है अशोक जी, बिकॉज यू आर ऑन द ग्राउंड. ये जो सपोर्ट आपको मिलता है, पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल बैकिंग, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट फॉर यू टू गो ऑल आउट? देखिए, जितनी भी फोर्सेज हैं डे वन से देश की अलग अलग टास्क के लिए, चैलेंजेस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, दे आर डूइंग देयर जॉब एज पर देयर मैंडेट. और जहाँ तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है, तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी सुरक्षा बल को अगर आप उसका टास्क डिफाइन कर दें और सरकार की तरफ से अगर क्लियर कट डायरेक्शंस हो और उसका सपोर्ट उसको समय से मिल जाए, जैसा कि नक्सलवाद को मिटाने के लिए अभी हाल ही में पिछले 2 साल में हमने देखा है, और इसका रिजल्ट भी आज हम देख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसा कि सर ने भी बताया कि इसको समस्या को खत्म करने के लिए, ये समस्या मैं समझता हूँ 1967 से भारत देश में चल रही थी, और आज अगर इसको खत्म करने में जो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति है. उस राजनीतिक इच्छा शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और जिसके लिए हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला, और उस वजह से हम कर पाने में सक्षम हो पाए. एंड द 210 जो बटालियन है सबसे एलीट मानी जाती है, एंड टॉप ऑपरेशनल बटालियन भी इसको इस अवार्ड से नवाजा गया है रिसेंटली ही. तो इसमें मैं जानना चाहती हूँ कि ये जब नाम हम सुनते हैं कोबरा बटालियन, इसमें जो छवि हमारे जहन में आती है वो बस लगता है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक बटालियन होगी, और वो हमने देखा है कि साबित भी हुई है बहुत ही खतरनाक. तो मैं रुद्रेश जी से पूछना चाहती हूँ, काफी यंग है और इतने कम उम्र में जिस तरह से आपने इस एक हिस्टोरिक, हम ऐतिहासिक कहेंगे इसको, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में आपने भाग लिया, और हम देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें एक जीरो कैजुअलिटी अगर हम बात करें, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये इंश्योर किया कि हमारा नुकसान ना हो. इंजरीज जरूर हुई लेकिन नो फेटेलिटीज एज फार एज सिक्योरिटी फोर्सेस आर कंसर्न. तो अपने आप में वो बहुत बड़ी बात थी. मैं स्ट्रेटजी पे आऊंगी, लेकिन ट्रेनिंग अगर आप बात करें, जो कि कदम कदम पे माइंस हो सकती हैं, टेरेन्स होते हैं, इस बार हमने केव इंटरवेंशन भी किया है, उस पर भी हम जानकारी लेंगे राकेश जी से. लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ कि कितनी रिगरस ट्रेनिंग होती है, क्या कुछ जाता है, अगर आप उसके बारे में बताएं. किस तरह से आपको साइकोलॉजिकली भी, मानसिक तौर पे भी किस तरह से ट्रेन किया जाता है? थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ट्रेनिंग की जहाँ तक बात होती है तो ट्रेनिंग हमारी काफ़ी रिग्रेस होती है, 10 to 12 वीक्स अराउंड, और उसमें अलग अलग तरीके से हर एंगल से, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हर एंगल से हम लोगों को ट्रेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज लाइक आईडीज, वॉकिंग अराउंड एट नाइट, जंगल वॉरफेयर, गुरिल्ला टैक्टिक्स, and the case studies, various case studies that are there. So yeah, it's very intensive, and we learn a lot, and we get capable of operating in the jungles after that training, and all of it like comes very naturally after the training, because even in like most of the operations we go out at night, so the training helps a lot. We have a lot of baggage, a lot of weight on our shoulders, rifles and all. The terrain is completely random. In one's, as you said, cave intervention and all. So there are many caves, and it's a very tricky area actually, the caves.
there are water points. The Naxalis know that we are going to come there at certain points. So they plant IEDs specifically around the paths that lead to the cave. So during one search operations also, I also got injured. So I was actually searching for the IEDs around the caves because we knew that there will be IEDs around there. So yeah, we demolished around 5 IEDs leading up to that cave. So unfortunately, I was leading that, and I was in searching for all the IEDs so that the area can be sanitized. But one of the IEDs we could not search around. So we had canine dogs, we had all the equipments, but unfortunately my leg stepped on it and I lost my leg. So, but yeah, the training helps a lot, because if I wouldn't have searched for at least 5 to 6 IEDs, I was in command of searching the IEDs. So I had to search for the whole place so that all the forces can come, and so it was kind of an ambush, and the training helps a lot. It builds our mental resilience, physical resilience, psychological resilience, obviously, because you will be pushed to a certain limit and it will get tough. It has to get tough because the ground reality is even more harsher. You never know what's going to happen there. So, yeah. Thank you. Rudresh, you're very young. You have 3 years. You've served for 3 years, am I correct? Yeah, 1.5 year training and 1.5 year in the field. And Rudresh here is a very brave officer. He lost his leg in one of the operations. What motivates you to keep going? He's right now in Delhi because he's getting treatment and rehabilitation, but he wants to keep going. So what keeps you motivated to keep going? Tell us your story. What happened and what is your motivation, Rudresh? The basic motivation of all the forces is to get the job done. So we have been given a deadline. We have been given a certain objective. And we don't think twice in doing the job and thinking, what if this, what if that, what if this. So even on that day, my job was to search for the IEDs. So I searched for the IEDs. Nothing comes, no second thoughts, nothing like that. So that has to be the basic philosophy of every citizen in the country, to just get the job done and be done with it, so that you don't have to do it twice or something. There is no room for incompetence, I think. When you are dealing with life and death, when you are dealing with people under you who are believing in you that the sir is going to command us and sir is going to make the place safe for us to lie down at night or something. So you don't have that kind of a margin, so that there's no room for incompetence. That's what I... Tell us about the keeps me operation. going. Where were you that day when this happened? How did the operation happen? How many officers were with you? And we'd like to hear from you, your story of how you came out of it. Yeah, so on 24th January night, we went out, and there's this hill, KGH hill. It's a rectangular hill around 60 kilometers to 20 kilometers. So there's not many ways that you can climb on that. So we have a single path around, and we have to go around that path only, because it's very difficult terrain, very, very difficult. So we marched at night, and in the morning only, since they expect that there are certain ways that we have come, so the IEDs that they have planted are infinite number. I mean, you can never get the IEDs out properly. So they know the place, they know on what path we are going to come. So they plant the IEDs specifically there, so that we eventually step on it. And we have all the K9 units and equipments. And we started around at night, and then in the morning we started climbing the hill actually. And in the morning itself at 8:30 there was an IED blast, and then multiple IED blasts happened. And before reaching the target that our battalion was assigned, so it happened around, my incident happened around 4:30. No, in the evening. And there were multiple blasts before that also.
in 8:30, 12:30, 10:30. Since there's only not many paths that you can come up to that hill. So my incident happened around 4:34, and it happened around 4:30, and then the support was very good. The helicopter came around, I think half an hour later, around 5:15 and all. So, and from that we flew to Bijapur, then flew to Raipur, and 25th of January I was injured at 4:30, and 26th of January I was in AIIMS Delhi by air ambulance. So the support was very good. There was damage, like substantial damage in the ground, but we cooperated a lot. The training came in, as she was talking about. The first aider and all, they helped a lot. They gave me injections and all. It was very swift. Otherwise, I would have lost a lot of blood. So, yeah, the training helped. Everything was very well coordinated. And by 26th night, I was in AIIMS Delhi, and my leg was amputated, and the surgery happened at night only. So it was very swift action, and yeah, that's it. And are you ready to go back again? I am ready to go back again, yes, but according to circumstances of let me heal first. If I can run, I can go anywhere then. Fantastic. Akshita. राकेश अग्रवाल जी, जैसे कि रुद्रेश बता रहे थे किस तरह से सपोर्ट मिला जब हम देखते हैं कि अगर इंजरी होती है, और ऐसी बहुत इंजरीज हुई भी हैं। अब हम देख रहे हैं तमाम दशकों से जो जिस तरह से ये रेड टेरर पनपता आया है, और बहुत कैजुअलिटीज हमने सुनी है, लेकिन इस बार हम जब सुनते हैं कि एक यंग ऑफिसर, एक यंग जवान जब बोलते हैं कि हमें सपोर्ट कितना जल्दी मिल रहा है, और कहाँ इसमें किस तरह से तब्दीली आपने देखी है कार्डर्स में, किस तरह का मोटिवेशन है? बिकॉज हमने एक तो पॉलिटिकल विल की बात करी, उसके साथ जब सपोर्ट आता है, रिसोर्स आता है पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, कितना जरूरी है और कितना चेंज आपने देखा है अपने तजुर्बे में, अपने तमाम एक्सपीरियंस में, जिसने आज हमने देखा है कि हम डेडलाइन पर खरे उतर पा रहे हैं? इसमें मैं जैसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2025 में अप्रैल और मई में 21 दिन तक एक ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर एक KGH हिल्स है, करेगुटालू हिल्स बोलते हैं, जो कि 50 किलोमीटर लंबी और 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी है, और जो तकरीबन 1000 मीटर ऊंची है। और उस पर चढ़ने के जो रास्ते हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। वो जो हिल है वो एक तरीके से स्टीप हिल है, तकरीबन 400 मीटर तक लगातार एकदम एक तरीके से वॉल समझ सकते हैं, ऐसी दीवार है। तो उस पर ये जो नक्सल्स थे, इन्होंने पिछले 5-7 साल से अपना गढ़ बनाया हुआ था, और वहाँ पर वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अपनी चला रहे थे। हम लोग टाइम पर ड्रोन्स वगैरह भेज के उनको कैप्चर भी कर पा रहे थे, और बाकी चीज़ों से भी उनको ट्रैक कर पा रहे थे। लेकिन उस पर ऑपरेशन जब भी फोर्स करने जाती थी तो वो इतनी ऊंची हाइट पर बैठे हुए थे कि उनको एकदम से पता लग जाता था, और वो आईडीज वगैरह लगा के फोर्स को डिमोरलाइज कर देते थे, और नुकसान हो जाता था फोर्स का, और फोर्स वापस आ जाती थी। तो इस बार गृह मंत्रालय के संरक्षण में एक बैठक हुई रायपुर में, जिसमें माननीय गृह मंत्री खुद आए, और सभी स्टेट्स के साथ में, और जो भी फोर्सेस वहाँ लगी हुई हैं, जिसमें CRPF क्योंकि लीड फोर्स है, वो हम सभी लोग उसमें शामिल हुए, और उसमें एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि जॉइंटली इसको कैसे टैकल किया जाए, और इसको जब टैकल करेंगे तो क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसमें कितनी फोर्स चाहिए, कहाँ से हम लोग जाएंगे, वो सारी चीज़ें डिसाइड हुई। और उसके अलावा फिर जब फोर्स जाएगी तो कोई भी जब फोर्स हम लोग जाते हैं तो 3 से 4 दिन का राशन हम लोग अपने साथ लेके जाते हैं, और हर जवान करीब 25 किलो वेट अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि 4 दिन में तकरीबन 2 लीटर डेली के हिसाब से पानी होता है, फिर खाना होता है, वेपन्स होते हैं, एम्यूनिशन होते हैं, तो 25 किलो उसके पीठ पे वेट लदा होता है। उससे ज़्यादा वेट लेके जाना और उस पर फिर पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल रहता है। तो इतना जब ये लंबा ऑपरेशन था, उसकी प्लानिंग हुई कि कैसे लॉजिस्टिक्स, जवान जब पहाड़ पर चढ़ेंगे तो कोई टेम्परेरी हेलीपैड ढूंढा जाएगा, और उस हेलीपैड पे राशन और जो एम्यूनिशन ख़त्म हो जाएगा उसकी ड्रॉपिंग होगी। तो वो सारी चीज़ें प्लान हुई।
तो इस सभी में गृह मंत्रालय का बहुत अच्छा सहयोग और बहुत अच्छा हम लोगों को सपोर्ट मिला, जिसमें बीएसएफ और एयरफोर्स के जो चॉपर्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, उनका सहयोग मिला। और डेली हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि चॉपर्स में 200 सॉर्टीज तक की, जिसमें कि मतलब पूरे दिन चॉपर खाली बैठता ही नहीं था, एकदम 2-2 मिनट के अंदर आ रहा है जा रहा है, क्योंकि इतने सारे 8,000 10,000 जवान थे। और उनके लिए अगर आप एक बार में चॉपर में जैसे सपोज 1200 किलो सामान जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि पानी का ही और राशन का ही और जो एमिनिशन है, और कई बारी जवान जब ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हो रहा था तो एक दिन रात को बिजली गिर गई। अब बिजली शहरों में तो गिरना एक बहुत ही नॉर्मल चीज होती है, कोई बिजली से कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वहां पे हमारे 5 जवान बिजली गिरने से बेहोश हो गए। अब उनको इमीडिएटली इवैक्यूएट करना था, तो चॉपर, क्योंकि लाइट बिजली चमक रही थी, तो चॉपर भी वहां लैंड नहीं कर पा रहा था, तो बड़ी मुश्किल से उनको, सभी के कोऑपरेशन से उनको बाहर निकाला और फिर उनको हॉस्पिटल में लेके गए। इसी तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स आई उनको सभी ने मिलकर दूर किया। और इस बार एक और अच्छा गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया था कि जो एयर एम्बुलेंस है उसको परमानेंटली 21 दिन तक जगदलपुर एयरपोर्ट पर प्लेस किया गया, ताकि कोई भी जवान अगर इंजर्ड हो जाता है तो उसको एम्स तक लाने में हमें एम्बुलेंस की वेट ना करनी पड़े। और एयर एम्बुलेंस से 21 जवानों को एम्स में डिफरेंट इंजरीज की वजह से लेके आया गया, और उसका फायदा ये हुआ कि किसी भी जवान की इस ऑपरेशन में जान नहीं गई। और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हमारी फोर्स के लिए और मोटिवेशन के लिए थी। जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनकी तरफ से जो इंट थी वो रियल टाइम पर आती रही, और उस इंट को जो ग्राउंड पे जो कमांडर्स थे, जितने भी कोबरा के कमांडर्स थे, डीआरजी के कमांडर्स थे, एसटीएफ के थे, छत्तीसगढ़ पुलिस के थे, सीआरपीएफ के थे, और जितनी भी फोर्सेस जो वहाँ लगी हुई थी उन तक उनके सेक्टर्स बनाए गए थे कि कौन सी फोर्स कहाँ पर है, और उन तक उस इंटेलिजेंस को पहुंचाया गया ताकि वो ग्राउंड पर एक्शन ले सकें। ये इन सभी छोटी छोटी चीज़ों में का ध्यान रखा गया, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया, और आपसी समन्वय की वजह से ही ये संभव हो पाया कि वो 21 दिन के ऑपरेशन के बाद जो नक्सलों का जो एक किला था उसको हम लोगों ने नेस्तनाबूद कर दिया। उसमें ना केवल 31 नक्सल मारे गए, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में उनके जो सामग्रियां थी, उन्होंने 5 साल तक वहां रहने के लिए राशन इकट्ठा किया हुआ था। इतना ज्यादा राशन इकट्ठा किया हुआ था कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में इकट्ठा राशन उतना देखा नहीं था। इसके अलावा वहाँ जो आईडीज ये लोग बनाते हैं जिससे कि विस्फोट करके जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी 4 फैक्ट्रियां वहाँ पर, जिसमें लेथ मशीन वगैरह उन्होंने लेके रखी हुई थी, कटर्स लगे रखे हुए थे, एक्सप्लोजिव्स वहाँ उनके पास रखा हुआ था। तो वो जखीरा हथियारों का हम लोगों को बरामद हुआ, 35 हथियार बरामद हुए, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डिफरेंट तरीके के केमिकल्स, विस्फोटक बरामद हुए, और उन सबको वहीं मौके पर ही डिस्ट्रॉय करके, वीडियोग्राफी करके डिस्ट्रॉय किया गया। तो इस ऑपरेशन की सफलता के बाद जो हम लोगों का, जो फोर्स का, सीआरपीएफ का जो मोरल है बहुत हाई हो गया कि अगर हम लोग इस हिल को जीत सकते हैं तो फिर अब नक्सलिज्म के जो दिन हैं वो इंडिया में खत्म हो गए हैं। और उसी का परिणाम है कि उस ऑपरेशन के कुछ दिन के बाद ही जो नक्सलियों के जो 21 इंडिया में मेन लीडर हैं, जिनको कि सेंट्रल कमेटी मेंबर्स और पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स बोलते हैं, उन 21 में से 20 जो नक्सल के जो सीसीएम्स हैं वो या तो पकड़े गए या मारे गए या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो आज की डेट में जो नक्सलियों की जो टॉप लीडरशिप है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसके अलावा जो 37 स्टेट कमेटी मेंबर्स थे वो भी सारे के सारे या तो मारे गए या पकड़े गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। अशोक जी, अगर आप बता सकते हैं कि इसमें इस बार हमने डिफरेंट क्या किया है, जिसके आपने बताया कि कितना बड़ा जखीरा था और एक कमांड सेंटर, यूनिफाइड कमांड सेंटर बनाया जा रहा था वहां पर हिल पर, तो इस बार हमने जो नई रणनीति अपनाई, चाहे वो केव इंटरवेंशन हो, चाहे वो जिस तरह से रिसोर्सेस हो, आपकी रणनीति में डिफरेंट क्या रहा है, आपके अप्रोच में डिफरेंट क्या रहा है ऑन ग्राउंड में जानना चाहती हूँ, जो हमने देखा है फाइनली उनको हथियार डालने पर मजबूर कर दिया।
देखो, नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने के लिए और एक टाइम लिमिट के अंदर में इस पे काबू पाने के लिए मल्टी डायरेक्शनल और आई कैन से कोऑर्डिनेटेड अप्रोच एक अपनाई गई, जिसके अंदर में जो सबसे बड़ी चीजें थी वो थी एक तो कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट ऑल एजेंसीज, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज हों, जिसमें सीआरपीएफ एज ए लीड फोर्स के रूप में जिसने काम किया, बिकॉज जो भी सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर में जो नक्सलवाद की समस्या है उसमें अक्रॉस द स्टेट्स अगर किसी एक फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहा है नक्सलवाद से की समस्या को टैकल करने के लिए तो सीआरपीएफ रही है। तो सीआरपीएफ के नेतृत्व में जितनी भी स्टेट फोर्सेज हैं, जैसा कि सर ने बताया कि एक बैठक के माध्यम से चीज़ें डिसाइड की गई कि इस समस्या से पार पाना है। और उसके अलावा जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो सपोर्टिंग एजेंसीज होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की हो, चाहे वो इंटेलिजेंस की हो, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट की हो, उनका कोऑर्डिनेशन एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा इसमें। और इसको कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो डीजी सीआरपीएफ है उन्होंने एज ए लीडर के रूप में इसमें भूमिका का निर्वहन किया, जो समय समय पे ग्राउंड पे भी जाके ट्रूप्स को मोटिवेट करते रहे और जितने भी हायर ऑफिसर्स या हायर स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ में उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया। दूसरा इसके अंदर में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो एफओबीज हैं। पिछले 4 साल में और अगर पर्टिकुलर कहूं तो 2 साल में सीआरपीएफ ने और बाकी फोर्सेज ने जहां भी सिक्योरिटी वैक्यूम था तो अराउंड 450 प्लस एफओबीज आई मीन फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस हम लोगों ने नए स्टेब्लिश किए, जहां पे नक्सल्स की एक जनताना सरकार जो इन्होंने नाम दिया हुआ था कि लोकल गवर्नेंस उनकी चलेगी, नहीं कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट चलेगी। तो वहां पे हम लोगों ने अपनी एफओबीज स्टेब्लिश की और 24/7 जहां पे वो अपना रिक्रूटमेंट करते थे, जहां पे अपनी जनताना सरकार का अपने चलाते थे, वहां पे सीआरपीएफ और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां पे कैंप्स लगा के उसको डोमिनेट किया और आम पब्लिक में एक ये चीज लेके आए कि आपके पास भी कुछ भी होगा, जिस भी चीज की जरूरत हो तो सरकार के रूप में आपके पास सीआरपीएफ वहां पे उपस्थित है। तो आप जाके चाहे वो मेडिकल की सुविधा हो, चाहे उनका इवन शिक्षा के लिए हो, चाहे लाइट के लिए हो, चाहे बिजली के आई मीन रोड के लिए हो, तो जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो उसके बाद पैरेलली तभी आया जब वहां पे आप लोगों ने आके एफओबीज स्टेब्लिश की। और जो तीसरा इसमें जो रहा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर स्टेट गवर्नमेंट्स ने रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज चलाई, सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज, कि जो आज की डेट में किसी भी वजह से मेन स्ट्रीम से मिसगाइडेड होकर जिसने वेपन उठा लिया और नक्सल बन गया है, तो अगर वो सरेंडर करना चाहता है उसको एक ऑप्शन दिया गया, तो उसका रिहेबिलिटेशन, उसका पुनर्वास जो है सरकार अपने स्तर पे करेगी, उसको स्किल की अपनी ट्रेनिंग देगी जैसा उसका एप्टीट्यूड है, और उसको एक मिनिमम निर्वहन भत्ता दिया गया, जिससे उन लोगों में एक धीरे धीरे विश्वास आया कि सरकार जो है वो चाहती है, आपका विकास चाहती है, आपको मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इनका आई थिंक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स किया गया इन चीजों को मिलके, और साथ साथ एफओबी स्टेब्लिश करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने और कोबरा के लीडिंग में आई मीन जो ब्रेक थ्रू है वो कोबरा की टीम्स ने दिलाया, जहाँ पे कोई भी जाने के नो गो एरिया होते थे, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो, तो वहाँ पे लीड कोबरा ने ली वहाँ पे, और कोबरा ने लीड देके वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ में बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग हैं उनको एक मौका दिया कि आप आइए और पब्लिक को बताइए कि यहाँ पे सरकार किसकी है और पब्लिक को क्या क्या चाहिए, सो दैट उनके आधार कार्ड बने। आप लोग सरप्राइज होंगे कि आज के समय में किसी के पास आधार कार्ड ना हो, राशन लेने के लिए उसको अपने घर से 20 किलोमीटर जाना पड़े पैदल पीडीएस के लिए, उसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, टेलीफोन टावर के लिए और रोड के लिए तो आप भूल ही जाइए। किसी अगर डिलीवरी भी होती है तो आपको कंधों पे उठा के लेडी को लेके जाना पड़ता था, 20-20 किलोमीटर तक राशन लेने जाना पड़ता था, नंगे पैर लोग चलते थे। तो आई मीन ये जो एफओबीज हम लोगों ने खोली तो वहां पे उनको एक विश्वास आया कि यस सरकार आपके पास आ गई, कुछ भी हो गया तो नक्सलियों के पास जाने की बजाय आप कैंप में जाइए, कैंप से अपनी समस्या का जो है बताइए, उसका समाधान होगा, और उनकी सुरक्षा की एक भावना दी गई। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने सस्टेनेबल ऑपरेशंस किए, ऑपरेशंस करने से गवर्नमेंट की रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज आई, तो उनके अरेस्ट हुए, सरेंडर हुए, और उसके बाद भी जिन्होंने नहीं किया वो मारे गए। वो सेल्फ डिफेंस में सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक मिनिमम फोर्स का है वो हो जाता है। तो पिछले 2.5 साल में आई मीन 2024 से लगभग 700 से ज्यादा नक्सली मारे गए, लगभग 2300 से ज्यादा अरेस्ट हुए और 5000 से ज्यादा लोग सरेंडर किए हैं। इस वजह से हम लोग इस नक्सलवाद पे काबू पाने के बहुत ही प्राउड फील होता होगा आपको भी सेंटिमेंटली। निरंजन, आई थिंक इट्स the headline when we actually read about it makes us swell with pride. Yes. And it's an honor to in fact
have our leaders Yeah. from the Cobra battalion to Rakshita, we talk about in the case of our armed forces at the borders, you know who the enemy is. The enemy is defined, right? You know who the enemy is. But in the case of internal security, I wanted to ask this question to each one of you. I'll give you each time to answer. You can take 30 seconds to 1 minute to answer this question. You can count the number of victims of terror in India, right? Cross-border terror. But look at the number of victims of Maoist terror. 9,000 civilians have been killed in the last 20 years. 9,000. Cross-border terrors are only a fraction of that. 2,700 security forces have been martyred fighting Maoists. 2,700, right? In the case of, and my question is, you can take it, Rakesh sir, and then Ashok ji and Rudresh can take, 30 seconds to answer. When you don't know who the enemy is, who's funding the enemy? Because the enemy is right next to you. The enemy is getting money from somewhere else. The enemy is pumping in money to Maoists to fight our forces. So how deal with that? So we refer to some of these people as urban Naxals. They could be anywhere. They could be around you. How do you deal with urban Naxals? I would like to say, एक जनरल परसेप्शन है कि गरीबी की वजह से नक्सलिज्म पनपता है, बट मैं कहूँगा कि जो हम लोगों ने स्टडी की है और जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है कि गरीबी का जो कारण, नक्सलिज्म का जो कारण है वो गरीबी नहीं है, बल्कि क्योंकि नक्सलिज्म वहाँ पैदा हो गया, इसकी वजह से वो उन एरियाज का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया और वो एरिया गरीबी में और डेवलपमेंट में पिछड़ते गए। जो नक्सलिज्म है वो उन एरिया में ज़्यादा फैला जहाँ पे कि टेरेन डिफिकल्ट थी, जंगल्स थे, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट की रीच नहीं हो सकती थी, तो उनके डेवलपमेंट की जो स्टेज थी वो वैसे ही थोड़ी कम थी। और जब वहाँ नक्सल ने अपना गढ़ बना लिया तो उन्होंने वहाँ फिर डेवलपमेंट होने ही नहीं दिया कि अब तो यहाँ पे हमारा राज चलेगा और यहाँ पर कैसे फंड्स इकट्ठा करना है वो हम लोग देखेंगे, यहाँ डेवलपमेंट हमने नहीं होने देना है। और जो छोटा मोटा वहाँ डेवलपमेंट हुआ था, कोई स्कूल बने थे, कोई हॉस्पिटल बने थे, कोई रोड्स बनी थी, कोई ब्रिज बने थे, कोई रेलवे ट्रैक बने हुए थे, उन्होंने नक्सलियों ने ये छत्तीसगढ़ साइड में और झारखंड साइड में उन सभी चीज़ों को उड़ा दिया, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट का कोई भी चीज़ पहुँच ना पाए। अगर मैं नक्सल फंडिंग की बात करूं, 300 से 400 करोड़ रुपए हर साल नक्सली जो है वो इकट्ठा करते थे लोगों से डिफरेंट तरीके से, जिसमें कि एक्सटॉर्शन होता था। जो भी माइनिंग कंपनीज हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंपनीज वहाँ काम कर रही हैं, उनसे एक्सटॉर्शन होता था। और एक टैक्स कलेक्ट करते थे, जितने भी वहाँ रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। इसके अलावा अगर किसी के पास ट्रैक्टर है किसी घर में तो उससे टैक्स लेते थे, उससे अपना लेवी कलेक्ट करते थे। कोई वीकली मार्केट लगती है तो उनकी दुकानों से फॉरेन फंडिंग भी था। हाँ, मैं आ रहा हूं। और उनसे पैसे लेते थे और इस तरीके की चीजें लोगों को ये कह के कि तुम हमारे नक्सल संस्थान के मेंबर हो, उनसे कंट्रीब्यूशन, मंथली कंट्रीब्यूशन जिसको कि वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कहते थे, वो जबरदस्ती लिया जाता था। और इसी में जो फॉरेन से भी इनके पास कंट्रीब्यूशंस आते थे, जो कि आते थे कि हम लोग यहाँ पे शिक्षा की क्रांति लेके आना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग ये वॉलंटरी समाज की भलाई का काम करना चाहते हैं, तो उसके नाम पर कंट्रीब्यूशंस फॉरेन से भी आती थी, जिस सब का जो उपयोग है वो सरकार के खिलाफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन के लिए और वहां डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ना पहुंच पाए उसके लिए किया जाता था। Ashok ji, in 30 seconds, if you can talk about this funding aspect, urban Naxals. What do you think of this urban Naxal का जो सोच है उसका? What is your take on that? We'd like to hear because हम मीडिया में बात करते रहते हैं urban Naxal के बारे में. What is your view on that? People who give ideological support to these Maoists. देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इलीगल हो चाहे लीगल हो,
उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको रन करने के लिए, या उसका जो भी आइडियोलॉजी या जो भी मैंडेट वो अपने आप खुद डिसाइड करता है, उसको करने के लिए तरह तरह की सपोर्ट्स की जरूरत होती है, वेदर इस ह्यूमन रिसोर्सेज और द फिनेंशियल। और एक जो माओवाद है, अगर आप उसको जाएं, उसके बीच में लिटरेचर में जाएं, तो ये एक ऐसा नहीं है कि ये इंडिया तक ही कन्फाइन है, बाहर से भी ये इसके बारे में जो है ये चीज़ें चली हुई हैं, या आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी का सपोर्ट जो है इसको देश में और विदेश में सब जगह से मिलता है। और फंडिंग जो है एक वो बहुत बड़ा वो है, जिसमें अर्बन नक्सलवाद की जहाँ तक बात करते हैं, जो भी ऐसा ही जो सोच रखते हैं कि सिस्टम में या सिस्टम के अगेंस्ट में जो जाना चाहते हैं कि ये चीज़ें, हर चीज़ आपको रोंग ठहराने की कोशिश करते हैं, और जिनको गवर्नेंस से या सिस्टम से या डेमोक्रेटिक दिस थिंग से, तो वो ये चीज़ें करने के लिए आज की डेट में हिंड्रेंस पैदा करने के लिए। और आपने बहुत सही कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपको ये नहीं पता हु इज योर एनिमी, क्लियर कट आपके पास में वो नहीं है। तो जो अर्बन नक्सल की इनकी बात करते हैं, जो अपनी सोच से, जो अपने विचारों से, चाहे किसी भी तरह के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की सोच रखते हुए जो चैलेंजेस पैदा हमको करते रहे हैं, तो वो चीज़ें रही हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बताऊंगा, जब मैं जहाँ तक विल की बात आई थी, जब से गवर्नमेंट की विल हुई तो ये चीज़ें भी बहुत धीरे धीरे, जैसे आर्म्ड कार्डर है नक्सल्स का वो खत्म हो गए, वैसे इस सोच में भी बहुत पॉजिटिव जो है इस फ्रंट पे भी जो चेंजेज आए हैं। पूरी तरह से रीढ़ तोड़ दी है, कमर तोड़ दी है। राकेश जी, आपसे जब बातचीत हो रही थी तो आप काफी ज्यादा प्राउड थे अपने कार्डर्स को लेके, तो अंत में एक अगर संदेश आप देना चाहते हैं सबको, देश को और अपने कार्डर्स को इस सफलता के लिए? इसमें मैं सबसे पहले जितनी भी एजेंसीज नक्सल मुक्त भारत में लगी हुई थी, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस हों, चाहे स्टेट पुलिस फोर्स हो, NIA हो, ED हो, और भी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, या जो भी जिन लोगों ने भी इसमें काम किया, उन सभी को जॉइंट टीम वर्क के लिए बधाई देता हूं। साथ ही मैं अपने उन जवानों के लिए और ऑफिसर्स के लिए उनको श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने इस लड़ाई में पिछले सालों में अपने जो प्राणों की कुर्बानी दी। उन सभी जवानों को भी मैं अपना ट्रिब्यूट पे करता हूं, जो इस लड़ाई में इस नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में जिन्होंने अपने शरीर का कोई भी पार्ट का नुकसान करवाया, और उन सिविलियंस को भी मैं ट्रिब्यूट पे करता हूं जो पुलिस इन्फॉर्मर के नाम पर नक्सलियों के द्वारा जिनको मार दिया गया। साथ ही इस लड़ाई में जिन लोगों ने इस लड़ाई का पार्ट बने, चाहे वो एम्स हॉस्पिटल हो, चाहे वो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर हो, या BSF के हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स हों या उनके जवान हों, उन सभी को मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और DG CRPF सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हर कदम पर इस लड़ाई में हम लोगों के साथ खड़े रहे। फील्ड में जाके उन्होंने हर जवान के साथ उसकी समस्या को सुना, उसकी देखा कि उसको कैसे समाधान करवा सकते हैं, और ऊपर के लेवल पर कैसे उसको समाधान करवाया, उसको पूरा उन्होंने देखा। और जो भी जवान जब भी कोई इंजर्ड होते हैं तो DG CRPF सर सबसे पहले एम्स में जाके उसको मिलते हैं, और जो जवान मार्टर्ड होते हैं उनके घर में जाके उनके घर की दुख तकलीफ को देखते हैं, और उसको जितने भी मार्टर्स के जवान हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको हम अपनी एक फैमिली मानते हैं, ताकि उनको उस जवान की कमी किसी भी तरीके से खल ना पाए। तो ये नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि इसको एक दिन में हमने कोई ऑपरेशन किया और उसको जीत लिया। ये बहुत ही लंबी गहन प्लानिंग के बाद और बहुत ही सभी के सहयोग के कारण इसको हम लोग जीत पाए हैं। इसके लिए मैं सारी CRPF की टीम को, कोबरा की टीम को, स्टेट पुलिस को, सभी को बधाई देना चाहता हूं। Thank you Rakesh ji, thank you Ashok ji, and thank you Rudresh ji for being with us. Ladies and gentlemen, 9,000 killed by Maoists.
very little is known about who they are and how they do it. But thank you, sir, for being with us. Thank you, gentlemen. Thank you very much. Thank you very much. Ladies and gentlemen, may I tell you to please rise as we give them a standing ovation. Gentlemen, thank you. I'd like to request the editor-in-chief and founder of Republic Media Network, Mr. Arnab Goswami, to please join Niranjan and Rakshita up on stage to felicitate the distinguished officers of the Cobra Battalion. We begin with a bouquet for the IG CRPF, Mr. Rakesh Agarwal. To Ashok Kumar, Commandant 210 Cobra Battalion. And we have one Rakshita. You can give it to Sub-Inspector Rudresh Singh, 210 Cobra Battalion. Ladies and gentlemen, the Cobra Battalion, representing the best of India, quiet courage, unwavering dedication, and a commitment to duty that asks for little recognition but deserves our deepest respect. Thank you very much, gentlemen, for joining us. May I request you to please take your seats in the audience as we move on to our next